I tried reaching you out. This might be a surprise. Where? On Instagram only. So you थोड़ा must बहुत be हमने having भी a team डिजिटल at least. मार्केटिंग सीखी है, बट आपने तो सब अप्लाई कर दिया यार. अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. Hi guys, welcome back to the Devi Show. You're on episode number 33. आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले I really want to make a humble request and give you a good news. Big Flex Marketing is now expanding into another team for the Devi Show and आप लोग बहुत हेल्प कर रहे हो ऑलरेडी उसमें मेरी, एंड देयर इज जस्ट वन रिक्वेस्ट दैट आई रियली नीड टू मेक इज कि प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब अस. आपको आइडिया भी नहीं है कितना ज़्यादा मोटिवेशनल होता है फॉर अ यूट्यूबर to see those numbers and to see them growing, and you know it gives us another level of motivation to keep doing what we are actually doing. It just gives us that pride ki all right, people are actually loving this. Thank you so much for the response you have given to us over the period of a short span of 6-7 months, but we really want to keep on growing, so don't hesitate on going to the subscribe button right now and just clicking it. Coming back to today's guest, आज के हमारे गेस्ट ने काफ़ी यंग एज में लास्ट 7 सालों में करीबन 6 अवार्ड्स जीते हैं. His brand became one of the best sellers for bathroom supplies and उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस में आके इतना he cracked the code for logistics, he cracked the code for selling online. उनसे डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी बातें करेंगे which you all know is one of my favorite topics to talk about, and how he grew his business, how he sorted his logistics out, what were his personal challenges. इससे पहले कि उनके इंस्टाग्राम पे 100K सब्सक्राइबर्स हो जाए, हम उनको पकड़ के लेके आ गए हैं जल्दी से, and I'll share his story with you all. So his name is Nikhil Moolchandani and I'm just going ahead to pick him up. So stay tuned and I'll see you in the end. Bye bye. Hi, how are you? Very good. How Good are to you? see you, good to see you. Lovely to see you. Thanks to Daisy. Thanks to Daisy, yes. Yeah. She randomly just texted me and I I'm like, saw your page anyways. Acha, Yeah. When you posted something with Raghu sir. Oh. So I've been working with him also. Oh since yes, he's an architect. 100%. When I saw Raghu in store with you, Huh. then I was like interested with the concept and I thought, yeah, this could be like really interesting for the audience also and the viewers as well. Oh yes. And then when Daisy told me, though, I was like, chalo, theek hai, let's do this. Tell me about your journey. The journey since from where you want to know. Like family. Since how it It's started. your family. It is was my your- family business, and that I think was a benefit for me because the business was already set, and the name is also not given by me. It has given by my father. It's a Okay. parental business. Okay. And when I entered, I realized that everything is, dependent upon leads. So I didn't used to understand what are showers, what are diverters, what is a wash basin. Huh. And to be honest, before like entering, like way before, I'm talking about my school time. At that point of time, I used to feel that I was not really proud of what my business was, because I used to think it's a very awkward kind of business to tell somebody I make washrooms. So I was not really impressed. I thought कि कोई jeweler होते तो ज़्यादा अच्छा होता बताने में ना, थोड़ा flexy होता. I didn't have that much of interest, but then when I did my CAT and all, so I failed massively in the CAT and all So stuff. what did you do after school? After school, And which BBA, school were you in? Seedling Public School, same as Daisy only. Acha, okay. Yeah, but I won't say unfortunately, just like Yeah, she did. Yeah, she because did. I'm like very grateful that I passed out from that school, because that Oh, wow. at least made me learn discipline, basic manners, basic understanding, exposure. So I'll not go to school for that. And then I had this St. Xavier's College. Huh. जिसमें भी academics में तो I was not that much of, मतलब इतना एक्टिव नहीं था मैं. हाँ. बट को करिकुलर एक्टिविटीज, यहाँ के ड्रामा क्लब्स, ये वो ऐसे वैसे इन सब में तो था ही. सो उस वजह से नेटवर्किंग वाज लाइक. कैट में कितने आए थे आप? कैट में आई गॉट 44%. Oh God. I had 2 attempts. हाँ. तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो आई गॉट 44 परसेंटाइल. देन आई थॉट कि चलो ठीक है, विल क्रैक इट नेक्स्ट टाइम एंड विल डू दिस, विल डू दैट. Yeah. एंड मॉर्निंग ट्यूशंस होते थे विच आई वाज बंकिंग हाफ ऑफ द टाइम. एंड जब मैं बंक नहीं भी कर रहा था तो भी मेरे को आधे टाइम मजा नहीं आता था. आई डिडंट यूज्ड टू एंजॉय इट. Yeah. तो इस वजह से तो सेकंड अटेम्प्ट जब मैं देने वाला था, मेरे एग्जाम आने ही वाले थे 3-4 दिन में, तो आई डिसाइडेड कि यार आई विल नॉट गिव द सेकंड अटेम्प्ट.
मतलब हम दूसरे साल मेहनत तो पूरी कर रहे थे, बट मुझे लगा अब हम अटेम्प्ट नहीं देंगे सेकंड। इस मीनवाइल पापा क्या बोल रहे थे? बिजनेस में आ जाओ। पापा मतलब he has played a very big role in whatever I have done today because he has never pushed or forced me to do any particular thing. So he has never told me कि तुम्हें पढ़ाई ही करनी है, तुम्हें टॉप ही करना है. He has never told me तुम्हें बिजनेस ही करना है. He was always open to me, which I believe कि parents should be like this so that kids can do whatever they want. And because सब लोगों के पास थोड़ा सेंस तो होता ही है, तो कोई भी अपनी बर्बादी अपने हाथ से तो करना नहीं चाहेगा. सब लोग एफर्ट पुट करेंगे तो कुछ तो करना चाहेंगे ही लाइफ में. तो इस वजह से ना मेरे को पापा ने तो कभी फोर्स करा नहीं, बट ही वॉज कि मतलब ही ऑलवेज वांटेड. उनको लगता था ऐसा कि मैं बिजनेस ज्वाइन भी कर लूंगा तो टर्नओवर में मतलब कितना ही फर्क आ जाएगा बिकॉज ऑफ वन सिंगल पर्सन, कितना ही बिकॉज एग्जिस्टिंग तो है ही. तो अनटिल अनलेस यू गो फॉर अनदर शोरूम या फिर यू डू समथिंग इन योर जॉब, दैट्स द ओनली वे यू कैन एक्सपैंड. या तो ही यूज्ड टू फील कि यार चलो कर लो तो बहुत अच्छा, नहीं करो तो भी सही है यार. मतलब वो ऐसे करते तुम बता दो तुम्हें क्या करना है. ही वाज नॉट वेरी मच फोर्सिंग मी एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो इस वजह से ना अब कैट सेकंड टाइम मैंने बता दिया भाई मेरे को नहीं करना. तो ही वाज पर्टिकुलर अबाउट दिस. इफ यू आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड विद कैट सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एनी फर्दर एंड जॉइन माय बिजनेस एंड आई विल गिव यू 10,000 रुपीज पर मंथ, व्हिच माइट साउंड वेरी स्मॉल काइंड ऑफ मनी, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि ठीक है यार, आई जस्ट वांटेड टू हैव माय ओन मनी सो दैट नोबडी आस्क. वैसे भी नहीं पूछते घर वाले तो कि कहाँ खर्च कर रहे हो, बट देयर इज अनदर फ्लेक्स इन हैविंग योर ओन मनी. तो इसलिए मेरे को लगा कि यार खुद का काम तो करना ही है, तो आई जॉइंड. इनिशियल 3-4 मंथ्स तो बहुत ही स्टूपिड थे, काम पर भी कुछ समझ में नहीं आता था बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ डिपार्टमेंटल स्टोर की किसी ने कुछ मांगा आपसे एंड यू जस्ट पुल्ड इट आउट ऑफ द रैक एंड दे दिया आपने. इट्स नॉट दैट सिंपल. तो क्लाइंट्स को पूरा समझाना, आपको खुद टेक्निकली सब कुछ समझना, कौन से प्रोडक्ट्स उनको सजेस्ट करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कैसे होता है, कौन सी ब्रांड है, कितना डिस्काउंट है. और इनिशियली मेरे को डैड ने बोला कि यू जस्ट गो एंड मीट आर्किटेक्ट्स विद देयर इज अ गाय कॉल्ड सिद्धार्थ. ही वाज Jaipur head of a company called Colston, which is a company from England, UK. So he told me that he is a working professional. You just go with him to architects and meet architects and see how things work. Because architect ही हमारी target audience होती है. Until unless they will suggest it to a client, we will not be able to have like big orders from anybody. तो I started that 3-4-5 महीने, उसमें से मेरे को कोई बहुत अच्छा ROI मिला नहीं. तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड कि ये सब कुछ ही डिपेंडेंट है लीड्स पर. और हमारे पास जितनी लीड्स होंगी उतना ही हम क्रेजीली काम कर सकते हैं. नाउ यू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस. नॉट एवरीबडी इज आवर क्लाइंट. ओके, सपोज वी हैव 100 पीपल अराउंड अस, तो उसके अंदर से 5-6% ही हमारे क्लाइंट्स होंगे. बिकॉज सपोज इफ आई टेल यू दैट आई हैव दिस जकूजी, आई हैव दिस बाथरूम प्रोडक्ट, बट यू आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग राइट नाउ, सो इट हैज नो इंटरेस्ट फॉर यू. तो यू विल बी लाइक कि यार मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है. तो वो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट 100 में से ऑलरेडी 5% है, डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन रेट हैपनिंग इन जयपुर और इंडिया. उस 5% स्पैन में लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस है, फिल्थी ऑप्शंस हैं कुछ भी खरीदने के लिए. सो वन सेकंड, दिस वाज ऑलवेज इनटू लग्जरी? काइंड ऑफ इनटू लग्जरी बिकॉज माय डैड ऑलवेज हैड कोल्स्टन एंड विट्रा एंड दीज टू ब्रांड्स आर इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड दे हैव good range of products. Like, yeah, they are not attacking masses. They have never planned to attack masses. They always had this idea of attacking good homes type of thing and good clients. तो इस वजह से टाइल्स का we were not doing that kind of thing. But when I entered, I thought कि चलो यार, it's a complementary product. When we have the potential customer who is investing in a good shower and a good bathroom, so they won't mind investing in good tiles also. It goes hand in hand. If I have a medium range brand and if I have premium tiles, I'll not be able to sing them both. Did you find that gap when you were discussing this with architects also? ये requirements तो No. I didn't really find any gap from the architects. Initially, though, I didn't used to get any input from architects. I was going and visiting them, and it was like कि ना इतना भाव नहीं मिल रहा था, ना मेरे को प्रोडक्ट्स की मतलब सेल्स मिल रही थी, ना मेरे को ज़्यादा इंक्वायरीज मिल रही थी. So I always had this question. मैंने YouTube भी करा, Google भी करा कि आर्किटेक्ट्स को आखिर चाहिए क्या हमसे, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में. तो एक आर्किटेक्ट है, his name is Anish Gurg. एंड आई मेट हिम थ्रू अ फ्रेंड एंड हम लोग पार्टी वार्टी करके हम लोगों ने फुल मस्ती करके हम लोग रात को आ रहे थे वापस कहीं से. तो आई हैड दिस क्वेश्चन इन माई माइंड ऑलवेज. और मेरे पास मतलब आई थिंक क्यूरियस रहना इज द मोस्ट क्रेजी थिंग अबाउट इट. मेरे को सॉल्व तो करना ही था ये चीज. तो मैंने उनसे पूछा, he was drunk, I was drunk. मैंने उनसे पूछा कि यार how do we get to architects? This is the biggest question in my life. How do I increase the ROI? If I'm meeting 100 architects, why only 2 or 3 are interested? Why the number is not rising? So he told me, everyone for sure have some projects running. 100%. 100%. And some big or other. Scale, Big scale, small scale, medium scale, that's another thing. But इतना मतलब भाव क्यों नहीं दे रहे मेरे को? तो he told me that night कि it's about the product you are selling.
look, it goes hand in hand. Architects also want dealers to be their friends and to be in touch with them. Yeah. But the point is, if I have basic products just like 10 other people, Right. then why would somebody, choose me to buy the Right. products from? Right. तो इस वजह से I started finding different products which are loved by architects. Then I used to check out Pinterest. Like if you type it on Pinterest, latest bathroom ideas, maximum architects are getting inspired from Pinterest only, Right. and the end users are also getting inspired from Pinterest only. But to be very honest, if you come to New Atish Market and you tell people that this is the washroom I want to make, I found it on Pinterest. Yeah. 80% of the people, 85% of the people, or maybe 90% of the people will not have the same products. Okay. That is one thing. So it is very clear. It is no rocket science. If people are getting inspired from Pinterest, Yeah. if end users are getting inspired from Pinterest, and the salesperson is not getting inspired from Pinterest, Yeah. then the chain is not going. Right? That's the loophole. That's the loophole. So I started keeping products which were on Pinterest because the demand was getting high from Pinterest only. Right. I recently saw those green tiles that you have, and I might have seen it on Pinterest. Divisha, it's like we only showcase 5 or 6% on our Instagram page. I have so much of material that I just cannot put it down on Instagram every Wow. time. So how did Instagram journey begin in all of this? It's like Instagram began because of a friend. So I used to know her, and she started doing something on Instagram, and I was not very much into Instagram. So I just started noticing that she was making new friends because of Instagram. Okay. She was getting little popular because of Instagram, and I used to see that her life just changed because she had like 15,000 followers, because she was she was known by a lot of people. People Right. wanted to meet her. I'm talking about 2019. Right. So I thought, yeah, this is something which can change anybody's life, just because more people know you. And she was doing some part of blogging and not even selling something. अच्छा. Okay. तो इससे Blogging क्योंकि उस टाइम पे बहुत niche industry थी. correct. So it was pulling attention from a lot of people. So I started doing it, but I had zero clue how to do it. And I started posting random pictures from Pinterest, which was like inspiration of bathroom products and this. So things happened, but the page went on 800 followers, 1000 followers, this. Then I met a guy virtually. His name is Gary Vee. I'm not sure if you know about him or not. Obviously you know. So I read a book, Crushing It, which is from Gary Vee. Right. Insane book. Everybody should read it. So while reading it, it has case studies. So case studies of how this guy went from zero to hero, how this girl went from zero to hero in her industry, in his industry, aisa. Right. So while reading it, I got to read about a guy who was a bathroom guy only. Oh. तब तो घंटी बज गई दिमाग की. मेरे ऐसा लगा कि भाई अगर he can do it, we can do it. At that point of time I used to have 1200, 1300 followers, and मैंने कुछ पैसा भी उससे नहीं कमाया था, to be very honest. लेकिन है ना, मैंने उसका प्रोफाइल देखा तो he was having somewhere around 20,000 followers. तो I thought यार he must be making a lot of money. That is the reason he is featured in a Gary Vee book. Yeah. तो अब मुझे पता चल गया कि यार ये चीज तो है, दिस इज एग्जिस्टिंग. इट्स नॉट लाइक कि हम कोई ऐसे ही नहीं कर रहे काम कि काम करेगा नहीं करेगा, दिस विल वर्क. तब आई गॉट टू नो, फिर आई गॉट इनटू गैरी वी अ लॉट कि यार वॉट एवर ही इज सेइंग आई नीड टू अप्लाई इट, वॉट एवर ही इज सेइंग आई नीड टू अप्लाई इट. एंड देयर वाज जस्ट वन गोल टू इंक्रीज माई पॉपुलैरिटी on Instagram. So when I did my some project here in Rajapark only, so I was leaving my showroom at around 2 p.m. and going there to click pictures and post it on Instagram. So my dad told me, yaar, you are burning petrol and are going to somebody's house to click a washroom picture. Are you serious? You are clicking washroom pictures and posting on Instagram? But I thought नहीं यार, कर लेंगे अपन. फिर है ना, स्ट्रैटेजी भी गूगल पर मिल गई, सब पता चल गया. फिर मैंने करा, थोड़ा और पोस्ट करा. तो मेरे को विद्याधर नगर से I got a very filthy good client. And तब तक I had not invested a single penny in Instagram. We were doing it all organically. Very filthy good client का बजट क्या होता है आपके? Very filthy good client का बजट होता है 7-8-10 लाख रुपए. सिर्फ वॉशरूम का? सिर्फ वॉशरूम का. तो इट्स लाइक ना, और भी टाइल्स है और भी मोज़ैक है, तो उसने वॉशरूम में भी लगा लिया माल, बाहर भी लगा लिया, ऐसा कुछ कर लिया. तो है ना, मेरे को रात को नींद आने में तकलीफ हो रही थी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वेस्टेड एनीथिंग इन इंस्टाग्राम. यू अंडरस्टैंड? आई पे समबडी, सम आर्किटेक्ट, सम क्लाइंट कि यार मेरे को कुछ काम दिलाना, ऐसा करना. दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. इसमें आई हैड इन्वेस्टेड ओनली माई टाइम एंड एनर्जी, नो मनी. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट अ क्लाइंट जो मेरे को अच्छा पैसा दे रहा है.
तो इसलिए मेरे को लगा कि यार ये तो करना ही पड़ेगा, मतलब यू हैव टू इंक्रीज इट एनी विच वे। तो तब फिर पापा को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा इंस्टाग्राम से आया था क्या, बिकॉज यार अपन अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो समझे पॉडकास्ट क्या होता है, क्यों होता है। They need results. They need results, है ना, यही सीन है। तो बस इस वजह से मुझे समझ आ गया कि लीड्स तो बढ़ ही सकती है इंस्टाग्राम से। तो इस वजह से मेरे को लीड्स की तो भूख थी ही, और फिर हम लोग और करते गए। एंड इट्स अबाउट, देखो है ना, ऐसा नहीं है कि किसी का भी ग्राफ है ना 0 to ऐसे जाता हो, मुझे नहीं लगता। मतलब देयर इज नो परफेक्शन इन एनीबॉडीज लाइफ ऑन एनीबॉडीज वर्क स्पेस। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड, एंड द ग्राफ गोज लाइक दिस ओनली। So sometimes you are low, sometimes you are high, sometimes you get a client, sometimes you are like 10 days no clients. ऐसा भी होता ही है। तो आपका टर्न अराउंड टाइम क्या होता है एक क्लाइंट का, कि लेट्स से It depends upon me कि मैं ना से कितनी जल्दी बात कर पा रहा हूँ। ऐसा भी होता है कि ना कोई क्लाइंट, कुछ लोग बहुत ही पहले आ जाते होंगे, लेट्स से सिविल वर्क नहीं हुआ है या ऐसा कुछ होता है। Let's not talk about it। ये तो इतना प्रॉब्लमेटिक चीज है ना, मतलब लोग ऐसे भी आ जाते हैं शोरूम पे कि we have just bought a land, let's see what we can do। And like you need to go home right now and relax, you have just bought a land। आप स्ट्रक्चर खड़ा करो, उसके अंदर देखो क्या होता है क्या नहीं होता। When जब आपको कोई टाइल वाला बोलता है I need tiles, तब आना आप मेरे पास। Because अभी प्रोजेक्शन के लिए I also cannot waste my time, my staff can also cannot waste their time। अभी नहीं बता सकते, it's not like a सेवा थिंग है यार। आप कुछ तो हो आपके हाथ में तो समझ में आता है, अदरवाइज आपको टाइम वेस्ट करना है तो भाई मार्केट में आपको पता है कैसा सीन है यार। देयर आर पीपल जो ऐसे शॉपिंग पे निकलते कि चलो देख कर आते, जब हम घर बनाएंगे तब क्या लगाएंगे। तो अभी फिर जस्ट एन आइडिया। हाँ, तो मैं तो उनसे मिलता हूँ, मेरे को लगता है यार इफ यू हैव एन आर्किटेक्ट, आई नो देम, चलो ठीक है, आई विल टेल यू, अच्छा मेरे फ्रेंड का रेफरेंस है, माय फ्रेंड्स पेरेंट्स आर कमिंग, ठीक है, आई विल पुट माय एफर्ट, आई विल पुट माय वर्क, मैं दिखा दूंगा, मैं बता दूंगा ऐसा। अदरवाइज आई पुट एवरीथिंग ऑन माय स्टाफ। आई ओनली फोकस ऑन द 20% ऑफ द एक्टिविटीज व्हिच क्रिएट द 80% ऑफ द रिजल्ट इन द एंटायर बिजनेस। तो इसलिए मेरे को लगता है टाइम वेस्ट करना ही नहीं है भाई। तो व्हाट इज योर दिनचर्या लाइक? दिनचर्या लाइक हम उठते हैं, हम वॉशरूम में घुस जाते हैं और सीधा हम लोग नहा धोकर बाहर आ जाते हैं। आपके वॉशरूम में आपकी टाइल्स लगी हैं? हमारे वॉशरूम में मेरी टाइल्स लगी हुई है, मेरे शाल लगे हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एक्टिव इन माय बिजनेस व्हेन माय डैड बिल्ट दिस होम। तो डिसीजन मेकर तो मैं था नहीं, हो सकता है आज भी नहीं हो डिसीजन मेकर, तो मैं घर में तो घर वालों की ही चलती है। बट है ना, हाँ, आई हैव हैड गुड शावर, एवरीथिंग, दे विल कम आउट, तो डैड इज वेटिंग एंड माय ब्रेकफास्ट इज रेडी। 90% ऑफ द टाइम्स मैं ब्रेकफास्ट अपनी गाड़ी में ही करता हूँ, क्योंकि मैं लेट ही हो रखा होता हूँ और पापा ऑलरेडी रेडी होते हैं आफ्टर डूइंग हिज पूजा एंड एवरीथिंग। तो हम रास्ते में यहाँ टॉक विद माय डैड एंड ईट माय ब्रेकफास्ट। अब हम शोरूम पहुंच जाते हैं, शोरूम पहुंचते ही स्टार्ट इंस्टाग्राम इंक्वायरीज, ये वो देखना करना। टू बी ऑनेस्ट, अभी इंस्टाग्राम आप अकेले संभाल रहे हो? ओह माय गॉड। यस, मैं अकेले संभाल रहा हूँ। आई नो आई एम लूजिंग अ लॉट ऑफ चले गए 3-4 घंटे तो इसी में ही चले गए। इसमें चले गए। अब ऐसा होता है कि अब इतना टाइम हो गया तो एक थोड़ी सी स्मेल आ जाती है, थोड़ा सा पता चल जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी माय पोटेंशियल कस्टमर और नॉट। तो फिर एक पेन पेपर लेकर बैठ जाता हूँ मैं, उस पर मेरे को लगता है कि दीज 30-40 पीपल आर पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर टुडे। तो उन लोगों को, सब लोगों को एक पेपर पर लिख लेते हैं अपन, जो हमको लगता है कि दिस कुड बी द पोटेंशियल क्लाइंट, और आधा दिन इसी में निकल जाता है ये काम करने में। और बाकी के आधे दिन हम जो लिस्ट बनाई है उन लोगों से बात करते हैं। हम इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उन्हीं लिस्ट से ही बात करते हैं कि बताइए क्या करना है, कैसे करना है। सबकी रिक्वायरमेंट्स बहुत स्पेसिफिक और डिफरेंट होती हैं और अलग अलग सिटीज से होती हैं। तो इस लिस्ट में बात करने के बाद आप और फिल्टर कर देते हो, तो आपको पता चल जाता है कि ये लोग तो द टॉप 3% है who just really want to buy the product tomorrow itself। और बाकी लोग बात करेंगे, पाइपलाइन में है, लेकिन 3-4 महीने में हमको अच्छा बिजनेस देंगे, ये फेल नहीं होंगे लोग। तो उन लोगों का भी आई हैव अ व्हाइट बोर्ड, उनका भी मैं नाम उस पर लिख लेता हूँ कि 2-3 महीने बाद आएगा क्लाइंट, लेकिन आएगा, पोटेंशियल तो है ही। तो फिर बस इस तरीके से काम होता है। इस बीच में कोई अगर शोरूम पर आ गया तो मैंने तो सबको बोल रखा है, अपने मतलब पापा को, स्टाफ को, कि भाई मेरे को किसी से नहीं मिलना, हमको सेल करनी ही नहीं है शोरूम पर। बिकॉज आप समझो यार कि एक जो ऑनलाइन कस्टमर होता है ना, वो 70% सोल्ड होता है। 70% सोल्ड इसलिए बिकॉज कोई हमको साल भर से फॉलो कर रहा है, 2 साल से फॉलो कर रहा है, तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस है हम में कि यार कोई 2 साल से फॉलो कर रहा है, उसको लग रहा है जब मेरा घर बनेगा तब आई ऑर्डर इट विद निखिल, मैं सारा सामान निखिल को बताऊंगा। और ये पर्सनल ब्रांडिंग हो गई, तो मेरे पास जो कॉल्स आते हैं ना वो ऐसे आते हैं, हाय निखिल भाई, है ना, मेरे को ये चाहिए, मैं जानता भी नहीं उसको, बट देयर इज अ कनेक्ट, देयर इज अ पर्सनल कनेक्ट व्हिच हैज हैपेंड ओवर इयर्स। तो इस वजह से ना मेरे को लगता है कि जो ROI है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और कन्वर्जन परसेंटेज है ना वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन। बिकॉज यहाँ लोग आएंगे, फिर है ना बात करेंगे, यार इतना प्राइस मत करो, उतना मत करो, ये दिखाओ वो दिखाओ, और फिर
इतना सारा मार्केट है, फिर वो यहाँ भी ढूंढ रहे हैं, वहाँ भी ढूंढ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो मेरा पोटेंशियल टारगेट कस्टमर है ना, वो दिन के टाइम फ्री ही नहीं है। दिन को मतलब कोई बहुत बड़ा बंगला बना रहा है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो वो दिन को गाड़ी लेके घूम ही नहीं सकता कि मैं यहाँ पर ऑप्शंस देखूं, वहाँ पर ऑप्शन देखूं। वो अपने आर्किटेक्ट को ही बोल देगा कि भाई फाइनलाइज इट एज पर योर एल। तो इस वजह से मेरे को लगता है, सिर्फ सकता है जनता को बहुत बार ऐसा लगता है कि यार यू आर बीइंग बायस्ड, आप है ना यार छोटे कस्टमर्स को आप ऐसा सोच रहे हो कि वो छोटे, ऐसा नहीं है यार। बट मैं बीइंग द मैन ऑफ माय बिजनेस, मेरे को तो ऐसे ही फोकस करना पड़ेगा ना ऑन द बेस्ट, इसलिए। तो आपका कंटेंट व्हाट डू यू थिंक इज द यूएसपी? कि आप कह रहे हो 1 साल से कोई हमें फॉलो कर रहा है तो वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी आई थिंक ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है। चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद है ना, आपको ये भी है कि ना कोई भी पेज होगा ना किसी भी बारे में, तो इट रिवॉल्व्स अराउंड 5-6 थिंग्स। जैसे मेरे पेज की बात करें तो आई पोस्ट अबाउट प्रोडक्ट्स, आई पोस्ट अबाउट क्लाइंट रिव्यूज, एंड आई पोस्ट अबाउट द ट्रांजिशंस, जो हमारे कैसा था बिफोर एंड आफ्टर। तो ये पूरी स्टोरी बन जाती है एंड इट डजंट बोर योर ऑडियंस। एंड इफ यू आर कमिंग ऑन योर पेज लाइक जस्ट द कार डीलर्स कम की ये गाड़ी ले लो इतने में, ये ले लो, तो इफ यू आर ट्राइंग टू सेल ऑल द टाइम, you might be able to get a lot of views but you'll not be able to build a following of that kind, है ना। जब तक you're not a storyteller, जब तक you're not sharing things, and then I post कि ना कोई किसी क्लाइंट ने कोई क्रेडिट ले लिया, फिर मेरे साथ कोई मतलब चोट कर दिया, कोई बीटी कर दी, तो भी है ना I post it कि यार this happened with me, this happened with me। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग वैसे करते हैं, सप्लायर ने प्रॉब्लम कर दी, ट्रांसपोर्टर ने प्रॉब्लम कर दी, तो आई थिंक है ना थोड़ा कनेक्टिविटी हो जाती है क्लाइंट के साथ। और मैं खुद शॉक हो जाता हूँ कि जो भी मेरे को कॉल करता है ना, तो मुझसे भाई करके ही बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो यार अपना मतलब सीन चल रहा है अच्छा, तो इस वजह से आई थिंक कि हुआ होगा कनेक्शन। अब हाउ इज योर फादर लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस कि फैमिली बिजनेस में आ गया और ये कर दिया जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था? टू बी ऑनेस्ट, मेरे पापा मेरे को तो नहीं बोलते बिठा के कि हाय मतलब वाओ निखिल, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद व्हाट यू आर डूइंग, ऐसा नहीं बोलते। बट अभी रिसेंटली किसी क्लाइंट से बात कर रहे थे तो बता रहे थे उसको कि हमने तो 200 सिटीज में माल भेजा है और ऐसा ऐसा करा है, उसको भी मटेरियल दिया है, इस होटल में मटेरियल दिया है। तो मैंने सुना ऐसे व्हाइल ही वाज टेलिंग इट टू अ कस्टमर, तो मुझे लगा कि ठीक है यार खुश तो है ही पापा। एंड देन देखो मुझे प्रॉब्लम तो किसी भी तरीके की पहले भी नहीं थी, बट अभी ऐसा है कि ठीक है नाइट स्टेज के लिए कुछ नहीं बोलते, कहीं घूमने जाना है तो कुछ नहीं बोलते, तो कोई पार्टी करनी कुछ नहीं बोलते। तो ऐसे पहले That is how you know you have made it in India. करेक्ट। जब आपके घर वाले आपको कुछ बोलना बंद कर दे तो आपको पता है आप सही राह पर हो। हाँ। नहीं तो दे विल ऑलवेज बी फ्रस्ट्रेटेड कि यार यहाँ क्यों जाना है, वहाँ क्यों जाना है, ये क्यों करना है, हफ्ते में 4 बार क्यों पार्टी करनी है। नाउ इज लाइक ठीक है निखिल कर लेगा मैनेज, तो ठीक है। और टाइल्स वाइज मोज़ैक्स एवरीथिंग इज डन बाय मी ओनली, तो इसमें फिर मतलब ही आल्सो डजंट नो कि सोर्सिंग कहाँ से है, प्राइसेस क्या है, क्यों है। तो मेरे से पूछते ही हैं। और फिर इंस्टाग्राम से हमको इतने क्लाइंट्स मिल चुके हैं आज तक कि भाई ही इज वेरी मच इम्प्रेस्ड डीप डाउन। वो मुझे तो नहीं बोलते ऐसे, शायद कोई भी पापा नहीं बोलता होगा अपने बच्चे को कि यार बहुत मजा आ गया आपके काम से, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये सब मूवीज में ही हो रहा है दुनिया में। हाँ बट ठीक है। बाकी सॉरी, बाकी ना रिश्तेदार बहुत बोलते हैं पापा को कि यार वी हैव सीन हिज पेज, ये तो अच्छा कर रहा है। कहीं से किसी कोई बुआ बोल रही है, कहीं से कोई मासी की फ्रेंड, मासी ये वो सब बोल रहे हैं, तो उसमें लगता है पापा को कि अच्छा चलो हाँ कुछ तो हो ही रहा है, समथिंग इज हैपनिंग। बट अब मैं कंटेंट के लिए कहीं जाना चाहता हूँ, कुछ बोलता हूँ मुझे इस एग्जीबिशन में जाना है, वहाँ पर ये शूट करना है, वहाँ जाना है, तो कुछ नहीं बोलते। ऐसा भी है। अंडरस्टैंडिंग आई थिंक सबसे बड़ी विन है। क्रेजी विन है यार, क्रेजी विन। मतलब तभी तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ ना कि मेरे पापा ने कभी मेरे को फोर्स करा ही नहीं कि ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो। लाइक जो अच्छा लगे वो कर लो। क्या एडवाइस है जो फैमिली बिजनेस कर सकते हैं बट काफी हिचक रहे हैं करने में? आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन। 2 सिनेरियो की बात करते हैं। अगर एक सिनेरियो जिसमें मैं कोई स्टार्टअप करता हूँ और उसको मैं पूरी जान लगा के बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, बहुत साल लगेंगे उसमें। देखो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम है ना हजारों में से एक एग्जाम्पल ही देखते हैं ऑनलाइन जो हमको लगता है वाओ इसने इतना पैसा कमा लिया, लेकिन सबके साथ नहीं होता है ऐसा अनफॉर्चुनेटली, स्टार्टअप्स में स्पेशली। और अगर आपका फैमिली बिजनेस है किसी भी चीज़ का, और इतने बिजनेसेस हैं कि लोगों को पता ही नहीं, और बहुत लोग ऐसा लगता होगा कि यार ये तो क्या ही चलेगा, इसमें तो कौन ही इंटरेस्टेड होगा। बट द प्लेस इज सो बिग और ये इतना बड़ा समुंदर है कि आपको 4 बूंदे भी मिल गई ना तो आप बहुत सॉर्टेड हो। मेरे हिसाब से तो विन विन सिचुएशन है। आपको डेफिनेटली प्राउडली एक्सेप्ट करना चाहिए पहले तो काम को कि दिस इज माय वर्क एंड नाउ वी नीड टू फिगर इट आउट। और आप कुछ भी काम हो आपका है, मेरे एक फ्रेंड का ना वीट का काम है, गेहूं का,
और मैं उसको इतना बोलता हूँ कि यार मेक वीडियोस, पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम, लेट पीपल नो यू आर डूइंग इट, बिकॉज पॉपुलैरिटी और रीच तो मिलती है ना। और रीच ही नहीं मिलेगी अगर आपको, तो आपके बिजनेस में क्लाइंट्स बढ़ेंगे कैसे? सपोज 500 पीपल नो अबाउट लाइफ टाइम बाथ एंड किचन, तो मैक्सिमम मैं उन 500 लोगों के अंदर ही बिजनेस कर सकता हूँ ना। मेरे पास 700-800 क्लाइंट्स तो आ ही नहीं सकते, बिकॉज नो नहीं 500 है। सपोज आपको मेरे बिजनेस के बारे में नहीं पता है, यू आर बिल्डिंग अ होम, तो यू विल नेवर कम टू मी बिकॉज यू डोंट नो अबाउट मी। तो वो रीच तो बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। आई बिलीव कि आपके पास फैमिली बिजनेस है तो आपके पास बहुत बहुत बड़ा पोटेंशियल और गिफ्ट है, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस है अपने घर वालों का, आपके पास सोर्सिंग सॉर्टेड है, एवरीथिंग, लॉजिस्टिक्स ऑलमोस्ट सॉर्टेड होते ही है सबके, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम होती नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्केल इट। और मैंने कॉलेज में भी, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत बार ऐसा करा है कि दिस इज द गिवन टास्क, यू हैव टू डू दीज थिंग्स, आपको ये मैनेज करना है, ये इवेंट करना है, इतने बच्चों को वहां लेकर जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो आई बिलीव उस वजह से भी यार एक कॉन्फिडेंस तो था ही कि कोई भी बिजनेस होना अपन कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं स्केल, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो स्केल और लीड्स हमने डिजिटल मार्केटिंग सॉर्ट कर ली, लॉजिस्टिक्स, सोर्सिंग, ये सारी एस्पेक्ट्स। तो देखो प्रॉब्लम इनिशियली रही और हम लोग ऐसे करते थे कि कहीं से गुवाहाटी, असम का ऑर्डर आ गया तो हम लोग असम का, मेरा एक राइट हैंड बंदा है, द मैनेजर, पंकज नाम है उनका, एंड ही हैज बीन वर्किंग सिंस 15 years विद माय फादर। तो आई जस्ट टेल हिम कि यार दिस इज द ऑर्डर, यू सॉर्ट द लॉजिस्टिक, दिस इज द ऑर्डर, यू सॉर्ट द लॉजिस्टिक। तो हम लोग है ना अलग अलग काम करें। जैसे अहमदाबाद का ऑर्डर है तो ही वाज जस्ट मतलब इंक्वायरिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट विच विल टेक द मटेरियल टू अहमदाबाद, और गुवाहाटी का है तो गुवाहाटी का सॉर्ट करो, फिर गुवाहाटी में भेजो माल। तो काफी अनप्रोफेशनल हो रहा था, लेकिन जुगाड़ तो कर ही रहे थे। क्लेम मैं कर रहा था हम पूरे भारत में माल भेज देंगे, कर देंगे, लेकिन कितना एफर्ट लग रहा था वो मुझे पता था। लेकिन मेरे को ऐसा था कि करना तो है ही, दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। और प्रॉब्लम्स भी आई, हमने बिहार एक ट्रक भेजा था विच वॉज फिल्ड ऑफ टेराकोटा जालीस, तो वो क्ले का बनता है मटेरियल, मुझे पता था ब्रेकेज आनी है इसके अंदर, बट हम क्लाइंट को तो बोल नहीं सकते थे ना कि यार नहीं आएगी ब्रेकेज, ये वो ऐसे वैसे। मैं कहा हाँ पहुंच जाएगा करके भेज दिया, और एंटायर ट्रक डैमेज था वहां पर, 3,60,000 का उसके अंदर मटेरियल था। तो अब क्लाइंट तो भाई मुझे ही फोन करेगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं उसको बोल दूं कि भैया मैं क्या करूं, और या तो फिर मैं उनको बोल दूं कि आई विल गेट दिस सॉर्टेड, और मैं घर पे बताऊंगा कि बाबा दिस इज द कस्टमर और ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो मुझे यही सजेशन देंगे ना कि भाई वेव हिम ऑफ, नहीं तो भाई 4 लाख का भी कौन भुगतेगा। बट मुझे ये पता था कि यार अपने अगर 500 फॉलोअर्स भी है ना तो हमको उनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा यार, अगर स्केल करना है बिजनेस तो नीयत तो साफ रखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा काम। तो फिर करके दिया उनको सॉर्ट, बाकी का मटेरियल फ्री में कि मैं करके देता हूँ आपको, बिकॉज करने। अब आप सोचो यार 1 लाख फॉलोअर्स हो लेकिन आप उनको है ना अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डिलीवरिंग व्हाट यू आर प्रॉमिसिंग, तो फायदा नहीं है। इट्स बेटर टू हैव 500 फॉलोअर्स एंड टेकिंग फुल फिल्दी केयर ऑफ देम, कि आप ढंग से उनका ख्याल रखोगे तो एनी विच वे आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड नोबडी फॉरगेट्स यार, उनको मैंने मटेरियल दिया तो उन्होंने 4 लोगों को बताया ही होगा, तो कहीं ना कहीं घूमकर तो आता ही है। इनका केस कितने टाइम पहले हुआ था? इनके केस को तो भाई 2-2.5 साल हो गए। उसके बाद तो हम लोगों ने ये कैसे सॉल्व? उसके बाद हमने ब्लू डार्ट से पार्टनर कर लिया, और ब्लू डार्ट का एक वॉल्यूमेट्रिक फेज होता है, मतलब एक सेक्शन होता है जो बिजनेसेस के लिए चलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अपना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ग्लास वाले भी कर सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट ब्लू डार्ट में भी मुझे 20% 15% ब्रेकेज देखने को मिला। और बड़ा गंदा प्रोसेस होता है कि क्लाइंट को इंश्योरेंस में लड़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसा वैसा। हम बहुत पैकेजिंग कराकर भेजते हैं, उसके बाद भी मेरे को 15-20% दिख रहा था ब्रेकेज, बट अब वो आता ही है, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। उसको मैं अपना मतलब पार्टी मानता हूँ, अगर आता है तो वी सॉर्ट इट फॉर द कस्टमर, करना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट, ऐसा है। और मैं क्लाइंट को, आप खुद सोचो, मैं अगर लेते टाइम उसको बोल दूंगा कि यार भाई मटेरियल टूट सकता है, हमने रिस्क पे लेना, तो 5% हो जाएगी सेल। 5% आपको कॉन्फिडेंटली बोलना तो पड़ता ही है कि यार करवा देंगे यार, कोई बात नहीं, जस्ट हैव फेथ इन मी, इफ समथिंग गोज रॉन्ग आई एम देयर विद यू, आई विल गेट इट सॉर्टेड। करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। तो इस वजह से तो ब्लू डार्ट एक्सपेंसिव भी है कंपैरेटिवली, लेकिन आप सोचो कि ना एक चैनी मतलब एक शांति आ गई। अब हमको पता है कि ये मटेरियल है, यहाँ भेजना है, उसका ब्लू डार्ट का एक एक्सेल शीट भी आता है विच दे प्रोवाइड टू देयर डीलर्स, और उसके अंदर यू जस्ट एंटर द वेट ऑफ द मटेरियल, यू जस्ट एंटर कि मेरे को इस सिटी में भेजना है, आपको 5 सेकंड्स के अंदर वो पैसे बता देगा कि इतने डिलीवरी अमाउंट लगेगा। तो आई थिंक इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी फॉर द कस्टमर ऑल्सो, बिकॉज कोई भी क्लाइंट मेरे से ऑर्डर कर रहा होगा समथिंग फ्रॉम मुंबई कि आई वांट दिस वॉश बेसिन टू बी डिलीवर्ड एट माय डोरस्टेप एंड व्हाट वुड बी द डिलीवरी चार्ज, तो मुझे उसको एक्यूरेट जवाब देना है 5 सेकंड में। कॉल पर भी नहीं जा सकता हूँ कि अच्छा बताना कितना लगेगा, फिर मैं उसको बता रहा हूँ, नहीं कर सकता। तो वो एक्सेल काफी सॉर्ट कर देता है, उसके अंदर आप सिर्फ बॉम्बे डाला हुआ ही है, आप सिर्फ वो डाल दो वेट ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो आपको बता देगा कितना प्राइस लगेगा, और आप डायरेक्टली कंज्यूमर को बता सकते हो। इनिशियली मैं क्या कर रहा था, अप्रोक्सीमेट 3,000 रुपए लगेंगे मटेरियल के, और फिर लग रहे 16,000 रुपए, 18,000 रुपए, तो वो सही नहीं बैठ रहा था क्लाइंट के साथ।
तो इस वजह से सॉर्ट तो हो गया। अब महंगा है वो सब है, वो मैं समझता हूँ, बट एक ही जगह सारी चीज कर रहा है, मतलब ब्लू डार्ट ही हर जगह भेज देता है, तो उस केस में मुझे थोड़ा शांति लगती है कि हमको सॉर्ट नहीं करना कि यार वहाँ कौन लेके जाएगा, अब सॉर्टेड है ब्लू डार्ट, तो वो तो एक बेनिफिट है ही है। और डिपार्टमेंट्स जिनमें आपने हाथ मारा और वो निखर गए हो? निखर गए हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट एक बात है कि जो डिपार्टमेंट से मेरे को पता है ना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, जैसे फाइनेंस है, तो मैं नहीं डालता उसमें हाथ। ये अकाउंट्स, ये इन लोगों से मैं नहीं बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार मैं इसमें नहीं डिक कर सकता। मेरे को मार्केटिंग पता है कि हम मार्केटिंग में अच्छे हैं, तो हम उसी पे काम करते हैं कि मार्केटिंग कर लो, और सेल्स मुझे पता है दैट इज द हार्ट ऑफ एनी बिजनेस, तो हम सेल्स पर काम कर लेते हैं, और सेल्स भी ऐसे कि चलो प्रीमियम क्लाइंट्स को टारगेट करें। नहीं तो नहीं। कोई मैसेज आता है यू आर सेइंग कि आप ऊपर से ही छांट लेते हो कि कैसा है, कैसे पता चलता है? नहीं, खोलता तो हूं ना मैं मैसेज, बट कितनी रिक्वायरमेंट कितनी स्पेसिफिक है। अब एक जकूजी की रील मेरी वायरल हो गई विच गॉट 5-6 मिलियन व्यूज, उस पे हजारों कमेंट्स आगे जकूजी प्राइस। दैट डजंट मीन कि इन हजारों लोगों को रिक्वायरमेंट है। आप समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट? बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोगों को एक्चुअली खरीदना होगा, शायद 3% ऑफ पीपल। तो अब आपको छाटना तो आप ऐसे नहीं छाट सकते, आपको ऑटोमेट करना ही पड़ेगा रील्स की, जब आप उनको मैसेजेस भेजोगे। लेकिन आप खोलते हो ना जब डीएम्स, तो आपको पता चल जाएगा। आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर होगा, आई विल गिव देम प्रायोरिटी फॉर 2 रीजंस। अभी तो मुझसे मटेरियल ले ही सकता है, लेकिन दे आर एडिंग अ कलेक्शन इन माय डेटा आल्सो, तो मैं उनका नंबर, आई थिंक दे आर द ओनली ऐसे लीड्स जो बार-बार आपके पास वापस आएंगे। बीइंग अ फ्रेंड विद एन आर्किटेक्ट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना उसमें। तो जितने ज्यादा लोग आपको जाने, जितने ज्यादा आर्किटेक्ट्स आपसे जुड़े, उसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं। उनको भी आपका प्रोडक्ट चाहिए, और मैं तो किसी को फोर्स करता ही नहीं आप मुझसे मटेरियल लो, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट आएगा कि आप मेरे पास लौटोगे ही, आज नहीं तो कल। और आर्किटेक्ट का भी पता है कि अगर अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे प्रोडक्ट में, अभी उनका नहीं चल रहा है काम, तो कोई बात नहीं, वो सेकंड में कर लेगा। लेकिन डेटा तो जुड़ गया ना, हमने व्हाट्सएप नंबर्स तो एक्सचेंज कर लिया ना, अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट में तो ऐड कर ही लिया, तो कुछ ना कुछ तो उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा, तो वो याद करेंगे मुझे। तो इस वजह से सोर्सिंग और ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने के ऊपर, सोर्सिंग इज लाइक यू नो आई जस्ट पिक जेम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेसेस। ऐसा नहीं है कि यार मैं एक कंपनी का काम कर रहा हूँ, करवाते हो? और नॉट डायरेक्टली, बिकॉज इंपोर्ट करने के लिए ना आपको उतना स्टॉक भी करना पड़ता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। वाइल एज मेरा फास्ट फैशन ब्रांड टाइप सोच है कि है ना, अभी ये चल रहा है तो हमारे पास ये है, कल ये चलेगा, हमारे पास वो होगा, तो आई एम नॉट वरीड अबाउट एनी ऑफ द स्टॉक व्हिच इज लाइंग इन माय गोडाउन कि भाई इसको मेरे को तो बेचना है। ऐसा नहीं है। आप मेरे पास आओगे तो आई विल नेवर पुश यू ऑन अ प्रोडक्ट बिकॉज मेरे पास वो स्टॉक में नहीं है। अदर डीलर्स वुड डू दिस बिकॉज दे हैव इट इन देयर स्टॉक, तो बोलेंगे कि यार दिस इज नाइस, ये ले लो आप, बिकॉज उनके स्टॉक में है वो। और मेरे लिए एवरीथिंग इज इक्वल, व्हाटएवर यू वांट टू गो फॉरवर्ड विद, तो मेरे लिए इट्स इक्वल। तो इस वजह से आई डू नॉट import anything myself as of now, but I am known to a lot of importers, and for that also I'll blame Instagram only. Instagram has all the credit. It is not just about giving me clients and money and sales. It has given me a lot of praises, a lot of compliments, a lot of fame, a lot of importers, and sourcing has also improved 10x. Agar initially I knew 5 tile suppliers, now I know like 60-70 tile suppliers in every city. Right. So it's just not limited to sales. It is also a lot more like networking also, and a lot more than that. Wow. तो इसलिए भी I believe कि Insta is crazy. Now I'll be planning in entering and diving in other platforms also. But let's see how it goes. Try YouTube. जब आप क्रैक कर लोगे तो मुझे भी बताना. हाँ, definitely. What are your future plans with? Future plans is now I want to have my own brand. To be honest, it is like very early to take it out right now on your podcast, but I am trying to build my own catalog. I'm trying to build my own brand where we have imported products which are not very famous, because you know there are importers which are not famous. That is their problem. They are importing material worth रुपी, मतलब करोड़ों रुपए का माल ला रहे हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी अपन से 3% भी नहीं है। तो वी कैन बी गुड प्रमोटर्स फॉर देम, एंड आप अच्छे से उनके प्रोडक्ट पे अपना मतलब यू कैन जस्ट नेम इट अंडर योर ब्रांड एंड सेल इट, एंड यू कैन मेक मोर डीलर्स. तो करंटली आई एम वर्किंग अपॉन दैट, मेकिंग माई ओन ब्रांड, बिकॉज यू सी थोड़े से जो ऑब्स्टैकल्स आते हैं मटेरियल बेचने में. इफ आई एम सेलिंग समथिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर ब्रांड विच इज अवेलेबल इन योर सिटी ऑल्सो, तो until unless I am not giving you more discount than what you are getting in your city, you will not take it from me. Right. That is also one problem. So if I have my own brand and there are dealers who are waiting for me कि यार निखिल कुछ प्रोडक्ट दो ना, we'll keep it at our showroom. तो ऐसे भी मेरे पास 70-80 लोग तो हैं ही पैन इंडिया. तो if I have my own brand, I can keep the product at their showrooms also. There could be a system
proper MRPs, proper discount structures, proper program for dealers, proper program for architects. तो उस हिसाब से everything can be in a flow. So that is what I want to do as of now currently. Because कब तक हम लोग है ना किसी और को प्रमोट करें, मतलब don't take me wrong, but ultimately तो you need your own thing which is not available anywhere. और फिर है ना कहीं से भी आप सोर्स करके बेचोगे विदाउट अ ब्रांड और विदाउट अ नेम, तो फिर यार क्लाइंट को कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा. तो जब तक आप वारंटीज नहीं दोगे या आपके प्रोडक्ट की अश्योरेंस या गारंटीज नहीं लोगे, तो फिर इतना सेल में पुश आएगा नहीं. सो अभी जैसे मेरे को गोवा में माल बेचना है, लेकिन गोवा में अब डायरेक्ट डिलीवरी करनी है. अब सपोज वहाँ पे कोई बहुत अच्छा शोरूम है, उससे मेरे को पार्टनर करना है, तो उसको मेरे को मटेरियल देना पड़ेगा. अब मैं कहीं से उठा के उसको मटेरियल दूंगा, तो टुडे और टुमारो दे विल नो कि यहाँ से निखिल ने लेकर हमको दिया है, तो टुमारो दे विल जस्ट ट्राई टू कांटेक्ट देम डायरेक्टली. और अगर मेरा ही प्रोडक्ट होगा तो फिर whom will you contact? It's like that. That's true. Amazing. We're wishing you all the luck from Team Divisho. I hope you. Thank you so much. एक तो सबसे पहले तो आपका 100K हुए सबसे पहले तो. 100K होने वाला है. Correct. मैं इंट्रो में भी यही बोल रही थी कि 100K होने के बाद फिर वो हमें पूछे ना इससे. नहीं यार, ऐसी कोई भी बात नहीं है यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और मैं सच बताऊँ तो मैं लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स पर कभी मैंने बहुत ज्यादा फोकस करा ही नहीं है कि भाई मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए. नहीं, अपने जितने हम उनका ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे. मेरी एक फ्रेंड भी है, शी स्टक ऑन 5000 फॉलोअर्स एंड शी जस्ट आस्क्ड मी सम डेज बैक कि यार मैं फेक फॉलोअर्स ले लूं क्या 4-5 हजार. मैं कहा भाई अपन को नहीं करना है काम, आप 5000 का ध्यान रखो. यू डू नॉट फोकस ऑन द नंबर. तो नंबर बढ़ भी गया तो कौन सा अवार्ड मिलेगा आपको? नंबर से होगा क्या? बिजनेस तो 1000 फॉलोअर्स में भी हो सकता है. हाँ 100%. मेरे को एक चीज हमेशा बहुत क्लिक करती है कि जैसे हम कभी लाइव जाते हैं या हमें लगता है यार 300, 500, 600 लोग ही है. एक बार इमेजिन करो, 600 लोग छोटे होते हैं क्या? हाँ भाई, एक बार इमेजिन करो कि तुम एक पेडेस्टल पे खड़े हो और नीचे 600 लोग हैं. क्रेजी है यार. तो एक बार वो विजन रखोगे ना, अपने सारे नंबर्स 10 भी बहुत बड़े लगेंगे इजीली. मेरे को तो कोई प्रॉब्लम लगती है और मैं नंबर से अटैच ही नहीं था. मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 70,000 पे स्टक था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 44,000 पे मैं स्टक था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नो प्रॉब्लम. आप फिर भी क्लाइंट रिव्यूज पोस्ट कर रहे हो तो कन्वर्जन होना चाहिए. कोई आपके पेज पे लैंड करता है तो उसको लगना चाहिए कि सही है ये बंदा. उसको ये डाउट नहीं होना चाहिए गलती से भी कि यार ये फ्रॉड कर सकता है, इतना मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है, मैं इसको 5 लाख रुपए कैसे ट्रांसफर करूँ, ये लेके भाग गया. तो ऐसा नहीं लगना चाहिए. तो आप अपना शोरूम भी दिखा रहे हो विच इज एन एविडेंस, आप क्लाइंट्स दिखा रहे हो, हैप्पी क्लाइंट्स दिखा रहे हो विच इज अगेन एन एविडेंस. तो आई थिंक दैट एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड. और कोई आपकी प्रोफाइल पे आए वो 5000 फॉलोअर्स हो, 50,000 हो या 1 लाख हो, अगर उसको ट्रस्ट हो जाता है कि यार ये सही कर देगा मेरा काम, तो वो लेगा ही आपसे मटेरियल मेरे हिसाब से. A lot, मतलब you've learned a lot in the last 6 years ever since you've been in the I have business. always been a learner. मेरे को किसी से कुछ भी सीखने को मिलता है, कुछ भी सुनने को मिलता है, मेरे को लगता है कि यार वैलिड पॉइंट है, दिस कुड बी अप्लाइड इन आवर ओन बिजनेस, तो अपन सीख लेते हैं. ऐसी कोई बात नहीं है कि यार मुझे सब आता है, ऐसा नेचर कभी भी नहीं है. कोई कुछ भी बताता है तो मैं, और मेरे को लगता है कि ये वैलिड है, दिस मेक सेंस, तो वो बात हमेशा ही रह जाती है मेरे दिमाग में कि उसने ऐसा बोला था. Amazing. Thank you so much for sharing everything with us and our Have I audience. shared everything? Yes. We have reached the end of our podcast. Thank you so much. Thank you for watching everybody. I hope कुछ ना कुछ 1% तो फायदा हो ही जाए किसी ना किसी को. और अगर फायदा नहीं भी हो तो कम से कम एंटरटेनिंग ही लग जाए. मैं अभी घर जा रही हूँ, मैं अपने पापा की वेबसाइट बनवा रही हूँ. हाँ तो बनानी है आपको यार, ये तो करना ही है. एवरीबॉडी शुड हैव देयर ओन बिजनेस. मुझे तो मोटिवेट कर दिया आपने. That's there. थैंक यू सो मच. और अगर नहीं भी हो मोटिवेट तो मैं बता देता हूँ कि मैं कमा रहा हूँ बहुत पैसा. इट्स वर्किंग फॉर मी एंड इट कैन वर्क फॉर एवरीबॉडी. मुझे करना ही है. डन. ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय बाय. बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल कॉन्वर्सेशन थी ये मेरे लिए. आई होप आप इनके इंस्टाग्राम पे जाकर इनका कंटेंट देख रहे हैं. You will get a very good idea of what Nikhil is doing on the page. और he was actually telling me कि जो भी अभी तक शूट भी हो रहा है वो भी मैं ही संभाल रहा हूँ. So fabulous job man, kudos to you. और जैसे डेजी ने रेफरेंस दिया मेरे को निखिल का, वैसे आप भी मुझे काफ़ी सारे रेफरेंसेस मेरे को DM कर सकते हैं. आई प्रॉमिस I'll see it. एंड हम एक छोटी सी कम्युनिटी है यार, तो एक दूसरे को सपोर्ट करो. इफ़ यू आर फ्रॉम जयपुर, recommend more people, go ahead and follow us, subscribe our channel. I'll make sure that I keep on bringing new stories for you every Friday. Thank you so much. I'll see you in the next episode. Bye.